Okay, once again, Assalamu alaikum and welcome to the lecture of MCC. Uh, Let me revise you that in the last session we have done with the GPRS part. If you remember, then we have gone through why the GPRS is needed, and we have seen the architecture model, or we can see the architecture reference model of GPRS. We have also gone through. In that, we came to know that okay, we have two entities, or we can say two network elements have been added. Two network elements have been added into the architecture of the existing GSM. Okay, तो जो existing GSM था उसके अंदर दो network module, you can see two network modules have been added, and those two network modules are SGSN and the GGSN. So basically, this GGSN is the gateway GPRS support node, and this SGSN is nothing but serving GPRS support node. Okay, so these were the two network entities. These two entities were introduced into the existing GSM architecture in order to make the GPRS architecture reference model. Okay, उसके बाद में हम लोगों ने दोनों का काम भी देखा. As you can easily आप लोग आराम से इसको मतलब समझ सकते हैं in this way कि this is the GGSN, that is the gateway GPRS support node. Sorry, this is the gateway GPRS support node. Okay, so this is at the edge. Okay, this is at the end of the reference model. So जाहिर बात है जैसे हमारा गेटवे ऑफ इंडिया इज एट द एंड ऑफ द मुंबई. ओके, एंड व्हेन यू वांट टू गो आउट ऑफ द मुंबई, then you have to take the gateway of India, and somebody who wants to come inside the Mumbai, then he or she has to come through gateway of India. So this is like a gateway. Okay, so this is a gateway for going out from the GPRS network, and this is the gateway to come inside the GPRS network. Okay, तो इस तरीके से उसका नाम गेटवे रखा गया है. तो gateway GPRS support node, which is going to take the packet data network, which is connected with the PDN, that is packet data network, which will take the data services from the PDN, and it will hand it over to the SGSN. Your SGSN is going to serve the SGSN का full form जो है वो है serving GPRS support node. This is the second network element which has been added into the existing GPRS architecture reference model, so that whatever services, whatever data it will take from the PDN, that is GGSN, so your SGSN, that is serving GPRS support node. So this SGSN is going to serve that particular data to the mobile station. ठीक है, तो आपका SGSN is going to your SGSN is going to serve that particular data to mobile station. Okay, via BSS. Okay, and with the help of MSC and the databases VLR, HLR, EIR, GR and all that. Okay, so ये हम लोगों ने last time देखा था. ओके, तो ये लास्ट हम लोग ने देखा था. उसके कुछ हम लोग ने काम भी, कुछ उसके टास्क भी देखे थे. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज UTRAN. ओके, एज आई टोल्ड यू दैट द फुल फॉर्म ऑफ UTRAN इज UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क. ये भी मैं इसको भाग जाता हूँ, रुको. ओके, सॉरी, कौवा पता नहीं खिड़की में कब से चिल्ला रहा था, तो मैं सोचा चलो थोड़ा उसको आगे तक करके आ जाऊँ. ओके, सो कहाँ थे हम लोग? So here's a new topic we are going to start today is UTRAN. Okay, बहुत कम क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके GSM के बेस पर ही आते हैं, बट स्टिल एंड दिस टॉपिक्स आर वेरी 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 सिंपल. मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है. एवरीथिंग एवरीथिंग जिसका भी बेस है वो आपका GSM ही बेस है. ठीक है, when I will show you the diagram of this UTRN, then आप बोलेंगे सर ये तो सेम एज द GSM डायग्राम है.
but entities खाली change है. Okay, so this is the different types of network, but the base of this particular network was GSM only, and the new network is UTRAN network, that is UMTS terrestrial radio access network. Okay, अब इसमें जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हो ना, वो एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले डायग्राम देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम पे आते हैं. डायग्राम इज वेरी वेरी सिंपल. नाउ बट जस्ट बाय लुकिंग एट द डायग्राम, कैन यू टेल मी that it is similar, is it similar to the GSM? Is it similar to the GSM? Because the entities what you are going, what you are looking at this particular diagram, in this diagram, so those are similar to the entities what we have seen in the GSM architecture. Okay, now let me show you. These are the user equipment. Okay, तो वहां पर नाम क्या था, मोबाइल स्टेशन था. ठीक है, MS नाम था. एवरीवन प्लीज फोकस ओवर हियर. ओके, दिस इज द डायग्राम विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर ये डायग्राम आपको समझ में आया तो बाकी स्लाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने डायग्राम देख के ही पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देना है. ओके, so everyone, I request everyone to please focus on this particular diagram. Okay, so in the GSM diagram you are having mobile station. In this particular diagram we are having UE, that is user equipment, one and the same thing. Okay, in each and every cell you can see, in each and every cell we are having one we call it as a BTS. Okay, that is base transceiver station, BTS. Okay, that BTS, या ये जो हमारा BTS है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग वे में बताया है. तो यहाँ पर इन्होंने एक थोड़ा सा एंटीना लगा के रखा है, एंटीना टावर वॉट एवर यू कॉल इट. ओके, सो जो भी आपका बंदा इस पर्टिकुलर सेल में है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो इस पर्टिकुलर सेल में है. ठीक है, तो अगर ये कम्युनिकेट करना चाहेगा तो किसको कम्युनिकेट करेगा, इसका सिग्नल पहले इस टावर पे जाएगा, फिर यहाँ से आपके नोड बी को जाएगा. नाउ ये हमारा ये हमारा क्या हुआ करता था, BTS हुआ करता था. ठीक है, in GSM it was like BTS. Okay, base transceiver station. Okay, ये BTS का नाम इन्होंने चेंज करके रख दिया है नोड बी. ठीक है कुछ चेंजेस, ज़्यादा चेंजेस नहीं है. That BTS was connected to the upper authority module, that was the BSC. हमारे GSM में क्या नाम था उसका, BSC. देखो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर सही से, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं. ठीक है, your BTS was connected to BSC in the GSM architecture, but in this architecture we have that is RNC, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर. ठीक है, we call it as a रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर. ओके, और जो हमारा पूरा सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो नेटवर्क सब सिस्टम. इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियो नेटवर्क सब सिस्टम. ओके, ऐसे पूरे नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियो नेटवर्क सब सिस्टम, और इसको बोलेंगे रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी एम्बिग्यूटी आ सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं बोलेंगे बट थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. तो यू नीड टू कीप इन माइंड दैट द कंप्लीट वन सिस्टम इज कॉल्ड एज RNS, दैट इज रेडियो नेटवर्क सब सिस्टम. और उसमें जो एक छोटा सा मॉड्यूल है जो BSC की जगह पर है, आई विल शो यू. in RNC an RNC in UMTS can be compared with the BSC. ठीक है, तो आपका जो RNC है that can be compared with the BSC. ठीक है, तो अब आपका जो यहाँ पर क्या हुआ करता था, BSC हुआ करता था, यहाँ पर हम लोगों ने इसको RNC किया. ठीक है, दैट इज रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर. इतना चेंजेस हुआ है. ठीक है, उसके बाद में आपके पास में क्या होता था, आपके पास में MSC हुआ करता था, MSC मोबाइल सर्विसेज एंड स्विचिंग सेंटर, या इन शॉर्ट मोबाइल स्विचिंग सेंटर. ठीक है, तो एट प्लेस ऑफ मोबाइल स्विचिंग सेंटर वी हैव CN. अब CN क्या है आपका, यहाँ पर CN इज द कोर नेटवर्क. ओके, यहाँ पर नाम क्या दिया इसका, CN इज द कोर नेटवर्क. यहाँ पर कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा मैंने, नहीं तो आगे कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा. ठीक है, सो दिस इज आवर कोर नेटवर्क. अब देखो आप थोड़ा सा सिस्टम समझो. GSM डायग्राम हमारा, लेट मी सी, मेरे पास में वो हाँ चलो अभी भी है. चलो, तो आप ये डायग्राम देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ GSM. ओके, वी वर हैविंग मोबाइल इक्विपमेंट. यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यूजर इक्विपमेंट. यहाँ पर हमारे पास में क्या था, BTS था जो कि हर सेल में वर्क करते था. तो हर सेल में वर्क करने के लिए हमारे पास में है नोड बी. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर था BSC जो कि मल्टीपल BTS को कनेक्ट करता था. वैसे ही मल्टीपल नोड बी को, जैसे ये दो नोड बी को ये वाला RNC कनेक्ट करता है. एंड दैट RNC इज नथिंग बट व्हाट, रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर. रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर. ओके,
और उसके बाद में फिर हम लोग आगे आते हैं, अभी वी आर जस्ट कंपेयरिंग इट, ओके। एंड दिस टू BSCs आर बीइंग कनेक्टेड टू द मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ओके। तो वैसे ही आपका ये दो RNCs है, तो दोनों दोनों RNC आपका कनेक्टेड किससे है, कोर नेटवर्क से, ठीक है। तो आपका कोर नेटवर्क मतलब आपका MSC यहाँ पर था और यहाँ पर आपका कोर नेटवर्क है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये UTRAN है, ठीक है। UTRAN का फुल फॉर्म वापस से आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ें जो आपको एकदम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा वो है कुछ एक्रोनिम्स वगैरह आपको याद रखना होंगे, जैसे कि UTRAN है, दैट इज UMTS टेरेस्ट्रियल, मतलब U फॉर UMTS, ओके। अब UMTS अलग से मतलब क्या बोलेंगे इसको, सिस्टम है, ठीक है। तो दिस इज UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, तो ये पूरा नाम इन्होंने दिया है। इसको हम लोग शॉर्ट में उतरन भी बोलते हैं, यूटी रैन भी बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह उसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। So the diagram is damn simple. You need to just remember the terms what are used in this particular what are used in this particular we can say diagram, ठीक है। तो डायग्राम में आपको खाली याद रखना है दैट इज यूजर इक्विपमेंट, देन वी हैव नोड बी, देन वी हैव RNC, देन वी हैव कोर नेटवर्क, ओके। अब चलो और वापस एक बार थोड़ा सा देखते हैं इसको, Okay. As you remember that we were having user interface, sorry, mobile user interface between the mobile equipment, that is the mobile station and BTS. तो दोनों के बीच में हमारे पास में एक इंटरफेस हुआ करती थी। तो वैसे हमारे पास में यहाँ पर कोई इंटरफेस दिखाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी कोई ना कोई इंटरफेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर और ऑब्वियसली वो आपका रेडियो इंटरफेस होंगी, मतलब कि वायरलेस इंटरफेस होंगे, बिकॉज यूर यूजर इक्विपमेंट्स आर ऑन द मोबाइल, ओके। they are moving from one location to another location. So in order to connect with the node B, for example, I am in this particular cell right now, okay, and I just want to make a call, then I will connect to first to whom, ठीक है। मैं पहले किसको कनेक्ट होऊंगा, is a question for you people। अगर मैं यहाँ पर हूँ फॉर एग्जाम्पल एंड आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद द पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मेरा जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट, जो इमीडिएट मेरा कॉन्टैक्ट मॉड्यूल रहेगा वो कौन रहेगा, सबसे पहले मैं अपने टावर के थ्रू अपने नोड बी को कांटेक्ट करूंगा, ठीक है। माय नोड बी विल कांटेक्ट, अच्छा वो चेक करेगा कि उसके अंडर में जितने सेल्स है, तो ये वाला सेल, ये वाला सेल एंड ये वाला सेल, these three cells are under node B, okay, okay। और फिर बाद में बाकी के ये हो गया, बाकी के जो दो सेल है, एक ये वाला सेल और एक ये वाला सेल, these two cells are under this particular node B, ठीक है। तो ये वाला फिर देखेगा कि मेरे कोई सेल के अंदर इसका नहीं है, फिर ये आपका ये RNC के पास में जाएगा, RNC यहाँ चेक करेगा, यहाँ पर भी नहीं है, तो फिर ये आपका कम्युनिकेशन आपका CN के पास में जाएगा, CN चेक करेगा, तो वो ये वाले RNC के अंदर, ये वाले RNC में, ये वाले नोड बी के अंदर, ये वाले सेल में उसको मेरा डेस्टिनेशन मिलेगा, ठीक है। तो इन दिस वे द कम्युनिकेशन कैन बी established, ओके। अच्छा, वी हैव इंटरफेस। If you talk about the interface, then BTS and BSC were connected with the help of interface Abyss interface. You remember that also, okay? So at place of Abyss interface, at place of Abyss interface, now we have IUB interface, okay? So these are the interface is also changed, okay? Now we have one more interface between the RNC and CN, okay? आप इसको कंसिडर करो, ये आपका BSC था, ये आपका BSC था, ये आपका MSC था। तो दोनों के बीच में जो इंटरफेस था, इट वाज लाइक A interface, okay? If you remember that interface, it was A interface. It was A interface, okay? So at the place of A interface, we are having IU interface, okay? तो जैसे इंटरफेस का नाम थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, दो इंटरफेस यहाँ चेंज हुए हैं, ओके। वी हैव वन मोर इंटरफेस, ओके, जो कि यहाँ पर नहीं था, ओके। इफ वी आर हैविंग, इफ यू वांट टू कनेक्ट दिस टू BSCs, ओके, जो कि यहाँ पर बताया है, दिस टू BSCs आर आल्सो कनेक्टेड, बट यहाँ पर कोई इंटरफेस नहीं बताया, ठीक है। सो टू BSCs, यहाँ के केस में टू RNCs कैन बी कनेक्टेड और कैन बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस IUR इंटरफेस, ठीक है। तो वी हैव गॉट टोटल थ्री इंटरफेसेस, वन इज IUB इन ऑर्डर टू कनेक्ट नोड बी एंड RNC। अब पुराने टर्म भूल जाओ, BSC, BTS, MSC, वो सब आपको GSM की हद तक याद रखना है।
मैं खाली उससे कंपेयर इसलिए कर रहा था ताकि आपको लगे और आपको ये समझ में आए कि दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज एग्जैक्टली रेप्लिका ऑफ द जीएसएम बट विद सम एडवांस फीचर। ठीक है, इन्होंने कुछ इंट्रैक्शन ज़्यादा रखे हैं, उसको प्रिसाइज किया है थोड़ा सा, मतलब आप लोग रीड करेंगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। द मेन फोकस वाज ऑन द डायग्राम। ओके, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम जस्ट बाय लुकिंग एट द डायग्राम। अगर ये डायग्राम आपको अच्छे से याद हो गया, मतलब समझ में आ गया, एंड ऑब्वियसली एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आराम से आ जाएगा। ठीक है, so just after the practicing this particular diagram for twice or thrice, you can easily draw this diagram, and if you can draw this diagram then you can explain this also। okay, because there's nothing like यहाँ पर बस खाली आपको user interface, node b, then we have rnc, and then we have core network। ठीक है, टर्म याद रहेंगे, यूजर इक्विपमेंट, नोड बी, आरएनसी एंड सीएन, और ये सारा का सारा आपका रहेगा रेडियो नेटवर्क सबसिस्टम कहलाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अभी जिस तरीके से आपका एक ये आरएनएस है, उसी तरीके से आपका आरएनएस नंबर 2 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इसी के नीचे आप वो कर लो, एक दूसरा वाला आपका आरएनएस रहेगा। ठीक है, दैट विल बी कनेक्टेड विथ योर कोर नेटवर्क। ठीक है, वो भी आपका कोर नेटवर्क से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ऐसे आपका और एक आरएनएस हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो नेटवर्क सब सिस्टम, वो भी आपका कोर नेटवर्क से कनेक्टेड होगा। ठीक है, इन द सेम वे वी कैन हैव मल्टीपल आरएनएस विच आर कनेक्टेड टू द कोर नेटवर्क, दैट्स सिंपल। ओके, तो इसी का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। द मोबाइल डिवाइस दैट इज यूजर इक्विपमेंट कैन बी कनेक्टेड टू वन और मोर एंटीनास। ओके, एज यू कैन सी। अच्छा, व्हाई इट इज टेलिंग दैट इट कैन बी कनेक्टेड टू वन और मोर एंटीनास? Why it is telling me that it can connect to one or more antennas? Because let me show you, because if the person right now is located in this particular cell, ठीक है, यहाँ पर है, और थोड़ी देर के बाद में, एक घंटे बाद में अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव हो जाऊँ, मतलब मैं चला जाऊँ, because I am free, I can go anywhere in the world। okay, so I have changed my location now। so earlier I was connected with this particular tower। ठीक है, दिस पर्टिकुलर एंटीना, बट राइट नाउ आई एम कनेक्टेड टू आपका ये वाला एंटीना। ठीक है, तो मेरा इसके थ्रू मेरा कनेक्शन होगा, इवन दो आई एम कनेक्टेड टू द नोड भी ओनली। ठीक है, तो वैसे ही मैं अगर यहाँ से यहाँ मूव करूँ तो फिर आप लोग देखोगे कि मैं इवन आई एम कनेक्टेड टू द नोड भी ओनली बट विद द डिफरेंट टावर्स। ओके, अच्छा मैं यहाँ पर मूव हो जाता हूँ, तब जाकर आपका ये वाला नोड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले नोड भी से मैं कनेक्ट हो गया। तो इन दिस वे यूजर कैन मूव एनीवेयर। ओके, जहाँ पर भी जाए। each RNC, that is radio network controller, is connected with the core network। okay, you can just go through diagram। each RNC, that is radio network controller, each radio network controller can be connected with the core network। ठीक है, with the help of IU interface। बस जो मैंने डायग्राम में बताया वही आपको थ्योरी में एक्सप्लेन किया है, there is nothing like any new। ठीक है, देखो यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया है कि इट इज सिमिलर टू द रोल ऑफ द ए इंटरफेस इन द जीएसएम। आईयू इंटरफेस जो आपका है, मैंने आपको नया बताया हूँ, तो दैट आईयू इंटरफेस इज सेम एज द ए इंटरफेस which we have seen in the GSM। ओके, तो बस जो मैंने बताया हूँ वही इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मैं ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाऊँगा। RNC दैट इज रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर के कुछ यहाँ पर टास्क है, जो कि टास्क मैंने मेंशन किया हूँ, दैट यू नीड टू रिमेंबर। कॉल एडमिशन कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड देन पावर कंट्रोल, कोड एलोकेशन। तो ये सब सारे उसके टास्क हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर few of the tasks। ओके, एंड देन यू कैन राइट इट डाउन इफ रिक्वायर्ड। देन उसके बाद में नोड बी के कुछ काम यहाँ पर है, तो नोड बी को मैंने मेंशन किया हूँ, दैट यू कैन रीड इट आउट एंड यू कैन गेट इट। ओके, देयर इज नथिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन दैट। यूजर इक्विपमेंट, तो उसके अंदर भी मैंने कुछ उसके रिगार्ड में कुछ पॉइंट्स मैंने निकाला हूँ जो कि मुझे इंपॉर्टेंट दिखे थे, वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग व्हाट यू कैन सी ओवर हियर, जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डायग्राम। and if you focus and if you remember the diagram, then you can easily write down whatever is written in this particular slide। okay, तो आई होप आपको ये वाला डायग्राम समझ में आया होगा।
It's all about the Uttaran, that is UMTS, terrestrial radio access network. Okay, again I'm telling you, this is Uttaran, that is UMTS, terrestrial radio access network. Okay, and this is based on the GSM architecture. And in this you can find the user equipment, that is UE, Node B, RNC, and core network. Okay, and all this module, this complete module is called as the RNS, that is radio network subsystem. Okay, RNC is nothing but the radio network controller, which is the replacement of the BSC. Okay, Node B is similar to the BTS. Okay, your core network is similar to the MSC. Okay, तो डायग्राम देख के थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया आया होगा. पहले मुझे बताओ, ये आपको चीज़ समझी या नहीं समझी, या वी नीड टू रिपीट इट. अगर आप बोलो उसको रिपीट करना है तो वी कैन रिपीट इट ऑल्सो. Everyone, please let me know. हेलो एवरीवन, किसी की आवाज़ नहीं आ रही है? Am I audible? Yeah, if I'm audible, then please let me know whether you people are understanding or not. समझ में आ रहा है आप लोग को? यहाँ 25 है, मुझे सबके सबके रिस्पॉन्सेस चाहिए. आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो जरा एक दो को पूछते हैं अभी. अरबाज, नखवा, आर यू प्रेजेंट? यस सर. ओके, समझ में आया क्या हम लोग ने पढ़े अभी? हाँ अरबाज, सर मैं अभी आया जस्ट वॉशरूम में था. आप जस्ट अभी आए? अच्छा, क्या बात है. अतरुबा, मोमिन, देखो सब फटाफट मीटिंग लेफ्ट कर रहे हैं. क्या बात है? लेफ्ट करने की बात नहीं है. मोमिन, अतरुबा, समझ में आया क्या पढ़े हम लोगों ने अभी? खुशबू लेफ्ट, ये लेफ्ट, शकील लेफ्ट. If there's anything you are not understanding, then please let me know. Let me take feedback from someone else. इसरार, हेलो. या इसरार समझ में आ रहा यस है सर. मैं, या फिर ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ, या कुछ और बात है? नो सर, प्रॉपर स्पीड मीन्स अंडरस्टूड अबाउट एंड व्हाट यू हैव टॉट अबाउट अतरन with the comparative study of GSM. यस सर. ओके. जानवी, जानवी, जानवी गायब. Actually, I'm taking this particular feedback so that I will come to know whether मतलब मेरी स्पीड फास्ट है या फिर कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है, like that. कुछ अगर कुछ बात है तो प्लीज लेट मी नो. ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज लेट मी नो.
So what we have learned today is all about the UTRAN, that is UMTS Terrestrial Radio Access Network. It's a kind of GSM network. जैसे GSM था वैसे आपका उतरन है, ठीक है। उतरन लेकिन आपका ये इसका जो जनरेशन था वो कुछ अराउंड थर्ड जनरेशन के आसपास में आया था। तो इसकी वजह से इसके पास में GPRS जैसे फीचर भी थे, ओके। और इससे डेटा नेटवर्क स्ट्रांगली कनेक्टेड था। और आपका जो 2G नेटवर्क था उसमें आपका डेटा नेटवर्क नहीं था, ठीक है। बिकॉज आपको याद है कि 2G के बाद में 2.5G आया था, ठीक है। 2.5G वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड जनरेशन प्लस GPRS, तो इट बिकम्स 2.5G। उसके बाद में थर्ड जनरेशन से आपके दूसरे नेटवर्क्स आना शुरू हुए, लाइक UMTS, उतरन एंड ऑल दैट जो भी। ओके, नाउ लेट मी शो यू। ज़्यादा नहीं है, आपको मैं स्लाइड शेयर करूंगा, आप लोग आराम से इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। जस्ट फोकस, एज आई टोल्ड यू, जस्ट फोकस ऑन द डायग्राम। डायग्राम पे आप लोग फोकस करेंगे देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। बस आप लोग को एक बार डायग्राम देखना है और उसको एक बार पढ़ना है, यू कैन इजीली गेट इट, ठीक है। इसलिए ज़्यादा इसके एक्सप्लेनेशन पे मैंने फोकस नहीं किया, जस्ट आई फोकस्ड ऑन द डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारा उतरन के बारे में था, दैट इज UTRAN। मैं बार बार उतरन भी बोलता हूँ बिकॉज थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाता है। तो UTRAN बोलो या उतरन बोलो, तो इट इज द आर्किटेक्चर ऑफ उतरन। यू कैन जस्ट practice this twice or thrice and you can get this diagram. You can draw this diagram in the examination also. As I told you that कि हमारे सिलेबस के अंदर ज़्यादा फोकस GSM को है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर वन कहाँ पर है भाई हमारा, let me show you। as you can see हमारा जो मेन फोकस है वो हमारे GSM के पार्ट पर है। you can see this particular syllabus, this is the syllabus copy which I have opened। so मेन फोकस जो है ना हमारा GSM पर है। GPRS एक टॉपिक है अलग से, और उतरन और UMTS कोर नेटवर्क है, ठीक है। तो इसमें इन दोनों में से एक आध क्वेश्चन आया तो आया, नहीं तो कोई पक्का नहीं, लेकिन इसमें से पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है। GSM में से क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, और इसमें से क्वेश्चन बेस पर आया तो एज अ सेकंड क्वेश्चन, बिकॉज एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो पूछेगा, या अगर एक क्वेश्चन आया तो भी इसमें से आएगा, 2 आएंगे तो एक इसमें से आना है और एक इसमें से आता है, ठीक है। तो GPRS के बारे में भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप सो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द GSM ओनली। बट उसके अंदर 2 नेटवर्क एंटिटीज हम लोगों ने ऐड किया है, हम लोगों ने नहीं बल्कि GPRS ने ऐड किया, एंड इट बिकम्स द GPRS, ओके। तो GPRS के बारे में भी आई होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। Then regarding Uttaran, I have shown you the diagram, and as I told you that diagram is everything. Okay, just now diagram is everything. So Uttaran ka diagram. Then we are having one more network, that is we call it as a UMTS core network. Okay, let me show you the diagram again. It is based on the previous diagram what we have seen. It was all about that only. Now UMTS, that is Universal Mobile Telecommunication Service. Okay, अब तक हम बोल रहे थे ना UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क उतरन, ओके। उसमें का जो U था दैट इज इट वाज फॉर UMTS। तो UMTS का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, ओके। as you can see in that particular one also that it was a third generation broadband service। थर्ड जनरेशन मतलब आपका 2G के बाद में GPRS आया, GPRS ने 2.5G बनाया, उसके बाद में जो थर्ड जनरेशन के बाद से ये सब नेटवर्क फिर आने लगे, ठीक है। तो UMTS आपका थर्ड जनरेशन के बाद में आया है। It is a packet based transmission of text, digitized voice, video and multimedia at data rates up to 2 megabits per second। बस आपको समझ में आना चाहिए, एक सर्किट स्विचिंग एक पैकेट स्विचिंग है। सर्किट स्विचिंग वाज यू कैन जस्ट इमेजिन, जैसा आपका लैंडलाइन फ़ोन है, ठीक है। तो लैंडलाइन फ़ोन में यहाँ से मैंने कॉल लगाया, टिंग टिंग ट्रिंग ट्रिंग करके मैंने कॉल लगाया, सामने वाले को कॉल लगा, तो दैट पर्टिकुलर कॉल विल बी बेस्ड ऑन द सर्किट स्विचिंग, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मेंटेन होता है, ठीक है। और आपका पैकेट स्विचिंग जो होती है, पैकेट स्विचिंग में फॉर एग्जांपल आई एम कॉलिंग टू समवन, then what will happen, that data, that information, that signal will be you know will be packetized and will be divided into some small part, and that will be sent as a packet, okay। तो पैकेट बेस्ड नेटवर्क या पैकेट स्विचिंग नेटवर्क एंड सर्किट स्विचिंग नेटवर्क मैंने वो आप लोग को दिया हूँ। वो मेरे जो ब्लॉग के ऊपर मैंने एक पोस्ट डाला था 2013 में, तो वो मैंने आप लोग को शेयर किया हूँ, यू कैन जस्ट रीड इट वंस, ओके।
कभी कभी ब्लॉग पढ़ना, कभी कभी आर्टिकल्स पढ़ना भी कभी फायदेमंद होता है, तो उसको कभी कभी रीड कर लिया करो। ओके, so UMTS network is a packet based network, packet based transmission of all the types of data, that is the multimedia. Okay, UMTS offers UMTS offers a consistent set of services to mobile, computer and phone users नो मैटर वेयर दे आर लोकेटेड इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो भाई साहब ये भी बोल रहे हैं कि हम भी आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं बोल रहे हैं। UMTS इज बेस्ड ऑन द GSM कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। तो हमारा जो GSM जो सेकंड जनरेशन में आया था, ऑब्वियसली जो उसके उसके बाद में आपका UMTS अगर आ रहा है, सो दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन द GSM ओनली। ठीक है, तो ये खुद बोल रहा है कि भाई हमारा जो UMTS नेटवर्क है, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम द थर्ड जनरेशन एंड इट इज यूज फॉर द पैकेट बेस्ड ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीमीडिया एंड इट ऑफर सर्विसेज टू मोबाइल फोन यूजर कंप्यूटर, सबको हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये इसका जो बेस है वो क्या है, दैट इज द GSM। ओके, उसके बाद में इसने बोला है कि UMTS स्पेसिफाइज अ कंप्लीट नेटवर्क सिस्टम विच इंक्लूड द रेडियो एक्सेस नेटवर्क UMTS टेरेस्ट्रियल, जो हम लोग ने बोला वो द कोर नेटवर्क। तो मतलब अब आपके जो UMTS का जो कंप्लीट नेटवर्क सिस्टम है, इसमें इसमें क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट इज द UMTS का रेडियो एक्सेस नेटवर्क, उसके बाद में द कोर नेटवर्क आपके मोबाइल एप्लीकेशन का ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर वाया सिम, ये सब के थ्रू होगा। मैं आपको एक बार डायग्राम दिखाऊंगा तो उसके बाद में शायद आपको समझेगा और अच्छे से। Figure shows the high level view of UMTS release core network architecture together with the UTRN, RNS and GSM का BSS। देखो उतरन का जो डायग्राम था, आप लोगों ने जो डायग्राम देखा था, लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ उतरन आल्सो। उतरन के डायग्राम में एक बार वापस देखो उतरन का डायग्राम। तो उतरन के डायग्राम का क्या चाहिए हम लोग को, RNS चाहिए। RNS क्या था, रेडियो नेटवर्क सबसिस्टम, याद है आपको? चलिए मैं बता देता हूँ। उतरन के डायग्राम का RNS मतलब ये पूरा कंप्लीट सिस्टम चाहिए। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन माय कर्सर, जस्ट फोकस ऑन माय वर्ड। ओके, जस्ट व्हाट आई वांट टू शो यू। अगर आप इसका मेन बेस फंडामेंटल समझ गए तो आप लोग बोलेंगे सर बस काफी, खाली डायग्राम काफी है, बाकी हम लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो UMTS नेटवर्क है उसमें क्या क्या है, उसमें उतरन का RNS है, मतलब RNS का जो आपको दिख रहा है कंप्लीट, यहाँ से पूरा जो दिख रहा है आपको कंप्लीट RNS पार्ट ऐड किया है। और क्या बोल रहा है, एंड GSM का BSS है। आपको पता है GSM का BSS, ये GSM का डायग्राम, इसमें BSS का है आपका, ये देखो ये आपका रहा BSS, बेसिक स्टेशन सब सिस्टम। और इसमें क्या इंक्लूड है, BTS और BSC दोनों इंक्लूड किया है। ठीक है, मतलब ये इतना पार्ट को उठा लो। ठीक है, तो उतरन के डायग्राम में से RNS का सिस्टम लिए और GSM के डायग्राम में से BSS का सिस्टम लिए, दोनों को आप लोग ने लिए और दोनों का भी मिलके क्या करेंगे आप देखो। अच्छा पहले क्या बोल रहे हो देखिए, and this show the evolution from GSM GPRS to UMTS and the core network shown here is basically the same as already explained in the context of the GSM। अब देखो यहाँ पर, अब जरा डायग्राम देखो और मुझे बताओ यहाँ पर 6% बैटरी आ गई, चलो फटाफट करते हैं। अब जरा मुझे बताओ यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है। देखो सिंपल है, एक जगह से ये आपका डायग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं UMTS कोर नेटवर्क एंड वी आर लर्निंग अबाउट दैट ओनली। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हम लोग वही पढ़ रहे हैं, UMTS कोर नेटवर्क के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें सबसे पहले यू कैन सी ये जो पार्ट है दैट इज द BSS पार्ट। ठीक है, बेसिक स्टेशन सब सिस्टम, ये कहाँ से लिया गया है, अरे बताओ ना कहाँ से लिया गया है, कोई मुझे बताएगा ये BSS का पार्ट कहाँ से लिया गया है? एवरीवन, GSM से लिया गया है। ठीक है, चलो तो ये आपका जो BSS का पार्ट है ये आपके GSM से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद में RNS का पार्ट कहाँ से लिया गया है, नाउ लेट मी शो। ये RNS का जो पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है, दैट इज ऑब्वियसली फ्रॉम द UTRN। ओके, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने ये UTRN से RNS का पार्ट लिया है। ठीक है, उतरन नेटवर्क से RNS का पार्ट लिया है। ठीक है, तो ये डायग्राम के दो मॉड्यूल तो आपको समझ में आ गए। ये दो मॉड्यूल के बारे में आपको पता है, तो एपएस इंटरफेस, IUB इंटरफेस एंड ऑल दैट। ठीक है, तो दो हो गए और ये रहा आपका कोर नेटवर्क। ठीक है, अब ये कोर नेटवर्क जिसको हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे ही शो किया था, आपको याद अगर होगा
तो उतरन नेटवर्क में हम लोगों ने देखो ये लिखा था CN, दैट इज द कोर नेटवर्क, ठीक है। यहाँ तो CN हम लोगों ने लिख दिया था, अब ये CN में एक्चुअल है क्या, ये CN में है क्या, यहाँ पर हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, बिकॉज डायग्राम बहुत बड़ा हो जाता है और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने उस डायग्राम को एज अ खाली CN करके लिख दिया, दैट इज द कोर नेटवर्क, ठीक है। और उसको फिर एक्सप्लेन यहाँ पर किया है, उसको उसने इलाबरेट यहाँ पर किया है। तो दिस इज योर कोर नेटवर्क, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा कोर नेटवर्क। अब इस कोर नेटवर्क में क्या है, चलो देखते हैं। आपका जो BSS पार्ट रहेगा, यानी कि जो GSM का है, वो कनेक्ट रहेगा, किससे रहेगा, MSC से कनेक्ट रहेगा, बिकॉज आपका आपका जो BSS है ये तो GSM का पार्ट है, तो दैट GSM पार्ट विल बी कनेक्टेड टू द GSM मॉड्यूल, और GSM मॉड्यूल कौन है हमारा, MSC मॉड्यूल है, ठीक है। ये हो गई पहली बात। MSC को VLR कनेक्टेड है, ठीक है, ये भी बात मालूम है। EIR HLR सब कनेक्टेड है, AUC GR सब कनेक्टेड है, ठीक है। उसके साथ में MSC को और भी एक मॉड्यूल कनेक्टेड, दैट इज GMSC, गेटवे मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अगर किसी का फोन, अगर अगर कभी कोई फोन लैंडलाइन को फोन कर रहा है, तो बाहर जाने के लिए आपको गेटवे मोबाइल स्विचिंग सेंटर लगेगा, जो कि आपके PSTN नेटवर्क को कनेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में आपके आपको आपको अगर कभी डेटा नेटवर्क यूज करना है, तो उसके लिए हमारे पास में SGSN है, GGSN है। ये आपने कहाँ पढ़ा बताओ मुझे, GPRS में आप लोगों ने पढ़ा है, SGSN GGSN। GPRS गेटवे GPRS सपोर्ट नोड एंड सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड, ठीक है। ये भी कनेक्टेड है इन सारे रजिस्टर्स को, ठीक है। RNC कनेक्टेड था हमारे SGSN को, ठीक है। ये दोनों का क्रॉस कनेक्शन भी है, यानी कि यहाँ की सर्विस यहाँ पर भी आ सकती है और यहाँ की सर्विस यहाँ पर भी आ सकती है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि आपका कोर नेटवर्क UMTS कोर नेटवर्क्स ने कैसे बनाया है, ठीक है। इट हैज टेकन द पार्ट ऑफ द GSM, इट हैज टेकन द पार्ट ऑफ द उतरन ऑल्सो, दोनों को लिया, एंड इट हैज टेकन द पार्ट ऑफ द GPRS ऑल्सो, ठीक है। इन तीनों का कॉम्बाइन करके, तीनों का उसने मिला के एक नेटवर्क बनाया और उसका नाम दिया है कोर नेटवर्क, UMTS कोर नेटवर्क, ठीक है। तो इसके अंदर सपोर्ट है हमारे सेकेंड जनरेशन को भी सपोर्ट है, थर्ड जनरेशन को भी सपोर्ट है। कैसे, आप लोग बोलेंगे सर कैसे, इसमें सेकेंड जनरेशन को सपोर्ट इसलिए आएगा बिकॉज आपका GSM कौन से जनरेशन से स्टार्ट हुआ है, दैट इज फ्रॉम द सेकेंड जनरेशन, तो आपके पास में GSM का सपोर्ट भी है, ठीक है, GSM का सपोर्ट है। आप बोलेंगे नहीं ये थर्ड जनरेशन का भी सपोर्ट चाहिए, तो थर्ड जनरेशन के सपोर्ट के लिए हमारे पास में हमारा उतरन नेटवर्क है, आपने देखा RNS है, ठीक है। तो हमारा उतरन नेटवर्क है, उतरन नेटवर्क इज कनेक्टेड टू योर GPRS ऑल्सो। तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन, तीन अलग अलग नेटवर्क का इंटीग्रेशन करके बना दिया है UMTS कोर नेटवर्क, which will provide the support for 2G also and for the 3G also, ठीक है। अब बस बाकी जो है लिखा हुआ वो खाली सिर्फ और सिर्फ जो है ना, तो मतलब किसको बोलेंगे, इसका थियरी है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो यहाँ पर कोई अलग सिस्टम बनाने के बजाय द मेन थिंग इज ओवर हियर इज दैट नाउ फोकसिंग हम लोगों ने किस चीज पर किया है, जरा ध्यान देना। हम लोगों ने कोई अलग से सिस्टम नहीं बनाया है, हम लोगों ने कोई अलग से नेटवर्क नहीं बनाया है, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को यूज किया है। हम लोगों ने क्या किया है, एग्जिस्टिंग नेटवर्क GSM का था उसको यूज किया, हम लोगों ने एग्जिस्टिंग नेटवर्क हमारा जो उतरन नेटवर्क था उसको यूज किया, हमारा जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो GPRS का था उसको यूज किया। इन सब को यूज करके हमने अपना एक नया नेटवर्क बना लिया, दैट वाज द UMTS कोर नेटवर्क, ठीक है। अब लास्ट स्टेटमेंट आप लोग के लिए समझ जाना अच्छे से इसको, reusing the existing infrastructure helps to save a lot of money and may convince many operators to use UMTS if they are already use the GSM, ठीक है। पहले 2G पे चल रहा था GSM, हमने ये बना उनको बोला भाई देखो you can easily switch from GSM to this particular network because it is same as that only, we have collaborated, we have integrated the GSM into our network, ठीक है, so you can easily use it। आप किसी थर्ड जनरेशन वाले, okay everyone,
एक सेकेंड ना, आ रही है मेरी आवाज, आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। हाँ, तो हम लोग मेरा एक्चुअली बैटरी अचानक वो हो गई थी लो। सो मैं आपको ये चीज़ बता रहा था लास्ट में। तो instead of making a new system, instead of making or designing a new system or new network system for communication and for the cellular system, we can make use of the existing system which has been already developed. So वही यहाँ पर बोल रहा है, reusing the existing infrastructure helps to save a lot of money and may convince many operators to use the UMTS if they already use the GSM and Utran network. ठीक है, तो ये बेसिकली आपने डायग्राम को थोड़ा अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग आराम से इसको समझ सकते हैं, कुछ ज़्यादा इसके अंदर वो नहीं है। सम ऑफ द पार्ट वी हैव टेकन इट फ्रॉम द GSM, सम ऑफ पार्ट हैव बीन टेकन फ्रॉम द Utran network and some part is taken from the GPRS नेटवर्क। तो तीनों को कंबाइन करके बनाया है और उसने इंटीग्रेट किया है, ओके, और वही इंटीग्रेशन को हम लोगों ने नाम दे दिया है UMTS कोर नेटवर्क, दैट्स ऑल। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द 3 नेटवर्क और द नेटवर्क। या ये जो आपका था ये था उतरन नेटवर्क, उतरन के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हम लोग आए UMTS पर, तो UMTS के बारे में आपका फिर हम लोग ने पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद में फिर आपका कोर नेटवर्क। ठीक है, सो ये यहाँ तक हम लोग रुकते हैं। फिर I'll stop the recording. टाइम मैंने आप लोगों का काफ़ी लिया हूँ। अब्दुल हादी